So in this lecture we are going to start with the view layer and the processes related to this view layer. As we have known already that while designing any application or any software, first and foremost task that anyone does is it designs the concept, that what has to be done in that application, what is the purpose of that application. Now keeping in mind the purpose of that application, what has to be done in that, the user will be served with a user friendly interface. Suppose you have downloaded an application and the application is not user friendly, that means you don't know how to use that application, then obviously you will uninstall it and download some another substitute. But if the application is very user friendly to you, you like using it, you understand everything what is going on the screen for you, then you will keep that application as it is much more easy to deal with that application. So the major and the most important task while designing an application is that the user interface of that application should be good. So to deal with that user interface design, we must see that the main goal of the UI is to display and obtain the needed information in accessible and efficient manner. That means the user doesn't feel bored and the user doesn't feel that the purpose is not being solved by your application. The user should feel that everything is accessible, whatever he needs to find in your application is easily available, and the application is performing as per the requirements of the user. So that means the application is efficient. So a well-defined UI has visual appeal. Visual appeal means that the user is so much impressed by your application that it looks so nice, so user friendly, that the user never wants to uninstall it and see for another substitute for that application. That motivates the user to use that application. So the major thing is, if the UI of that application is good, it is user friendly, everything you need is accessible, and the user feels that it is efficient application for your work, then why the user will uninstall that application? It motivates the user. So if our UI is good, that means our market is going to be good for that application. So what all we need for a good UI design, the first thing that we need is a curious and imaginative mind. A programmer, the designer of that application that is going to design the user interface, should be able to think in the terms of user, that what the user needs, how should I design that application so that it is eye catchy for the user. And the second thing that the designer needs is a broad background and fundamental knowledge of existing tools and methods. Obviously, if the designer doesn't know how to build up the design of that application, which software to use, which tools to use, how easily that UI can be developed, then that designer or that programmer is not capable to design any application. ऑब्वियसली अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स यूज करने हैं, तो आप डिजाइन कैसे बनाओगे? सो यू हैव टू गेट द नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग टूल्स एंड मेथड्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड, एंड उनको यूज कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए. Third point is an enthusiastic desire to do a complete and thorough job of discovering solutions once a problem has been defined. That means if any customer comes to you and asks for designing an application, that means the customer is giving you the problem. The customer is having a problem and asking you to please design a solution for this problem in a user efficient manner. So that designer or that programmer that is going to build up that application has to be enthusiastic. Enthusiastic means that programmer should be motivated enough to solve the problem of the user. अगर प्रोग्रामर का ही मन नहीं लगेगा काम करने में, तो वो यूजर की प्रॉब्लम अच्छे से कैसे सॉल्व कर पाएगा? एक ग्राफिक डिजाइनर, एक प्रोग्रामर को ऐसा बनना पड़ेगा कि वो यूजर की प्रॉब्लम को अच्छे से समझे और उसका बेस्ट सोल्यूशन यूजर को दे, तभी यूजर का प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपकी एप्लीकेशन जो है वो अच्छी बनेगी. Fourth point is being able to deal with uncertainty and ambiguity and to defer premature closure. ये fourth point बहुत important है.
फोर्थ पॉइंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी, किसी प्रोग्रामर ने वो बनाई थी, तो उसके अंदर बग्स थे. नाउ it is the responsibility of the programmer to remove those bugs and provide you with a consistent update. वो एक ऐसा अपडेट दे उस एप्लीकेशन का जिसमें वो बग्स अब ना हो या एम्बिग्विटी ना हो, मतलब कंफ्यूजन ना हो कि एप्लीकेशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिससे पता नहीं लग रहा यूजर को कि हो क्या रहा है एक्चुअल में बैकग्राउंड में. उसको कहा जाता है एम्बिग्विटी. मतलब वही बग्स वाली बात. एंड टू डेफर प्री मेच्योर क्लोजर, मतलब जब एप्लीकेशन चलते चलते क्रैश हो जाए, अपने आप बंद हो जाए, उसको कहा जाता है प्री मेच्योर क्लोजर. तो इस चीज से अगर एक प्रोग्रामर, एक डिजाइनर डील कर पा रहा है, वो अपनी एप्लीकेशन को इस चीज़ों से बचा पा रहा है, बग से और प्री मेच्योर क्लोजर से, दैट मीन्स उसका यूआई डिज़ाइन परफेक्ट है. तो यूआई डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें ऐसा प्रोग्रामर, ऐसा डिज़ाइनर हायर करना पड़ेगा जो यूज़र की टर्म्स में सोच सके, ताकि उसकी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो, उसको सारे टूल्स की नॉलेज हो, सारे सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज हो, जिससे वो अच्छे तरीके से अपनी एप्लीकेशन बना सके. दूसरा, उसके पास वो काम करने के लिए अच्छी मोटिवेशन हो, तभी वो अपनी फुल एफिशिएंसी यूज़र को दे पाएगा. चौथा, अपनी एप्लीकेशन को बग्स और क्रैशेस से बचाने की प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेता रहे. तो ये तो था इंट्रोडक्शन टू यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की होना क्या क्या चाहिए. नेक्स्ट हम आते हैं डिज़ाइनिंग व्यू लेयर क्लासेस पे. व्यू लेयर क्लासेस से पहले let us understand what is a view layer. Suppose you have downloaded an application, and when you start using that application, for example you download the Facebook application, and when you start using the Facebook application, first if you don't have any Facebook account, you have to register your account on Facebook, and then you can log in onto the Facebook. So what you are actually doing is, on the application of Facebook you have got a user interface, and in that interface you have got a form where you will fill the first name, last name, your email id, your date of birth, other relevant information. You will create your own username and you will enter the password that you will use to log in your account, and finally you will click on register. So you have one form kind of thing. एक फॉर्म बना हुआ है जिसको आप फिलअप करते हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तभी आपका अकाउंट खुलता है. तो वो उस फॉर्म को मैं क्या बोलूँगा, व्यू लेयर. जो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है यूज़र इंटरफेस के अंदर जिससे आप एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करना चाह रहे हो, दैट इज कॉल्ड द व्यू लेयर ऑफ दैट एप्लीकेशन. Similarly, when you are using the login page, you will enter your email ID and password and click on login. That is also a short form. So that also comes into the concept of view layer, because through that login page only you are interacting with that application. Whenever you post something on Facebook, you write something in the post section of the Facebook and then click on post. So that is also a form. You are interacting with Facebook application through that form only. You are chatting with your friends through the Messenger application using some form only. So that is the view layer. So there are two main aspects of the view layer. First is input and second is output. Input means responding to user interaction. आपने फॉर्म भरा, अब एप्लीकेशन आपको उसके लिए कैसा रिस्पॉन्ड देती है, मतलब आपने फॉर्म भरा तो आपने एप्लीकेशन को इनपुट दिया ना. वेन एवर यू फिल अप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यू गिव द इनपुट टू दैट एप्लीकेशन, एंड आफ्टर गेटिंग दैट इनपुट द एप्लीकेशन विल प्रोड्यूस सम आउटपुट. सो it is input means responding to user interaction. Whenever you fill up the form, the application will say your form is submitted successfully, your account is created. And the output, displaying or printed business objects. That means output is that your account has been successfully opened. Now you can log in to the Facebook using your username and password. So एक तो था इनपुट जो यूज़र ने दिया, और उसके बदले में उसको एक आउटपुट मिला जो था उसका अकाउंट खुल जाना, ताकि वो फेसबुक की एप्लीकेशन से अब इंटरैक्ट करना शुरू कर सके. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग व्यू लेयर क्लास इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर एक्टिविटीज. अब हमें ये तो समझ आ गया कि व्यू लेयर क्या होता है. व्यू लेयर क्लास क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है, उसके अंदर क्लास का मतलब क्या होता है? कुछ सेट ऑफ वेरिएबल्स, कुछ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स और कुछ सेट ऑफ मेथड्स आपने एक सेट ऑफ ब्लॉक के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिए, तो आप उसको क्या कह देते हो? क्लास. तो वो मेथड्स और वो वेरिएबल्स, वो कॉन्स्टेंट्स मिलजुल के किसके ऊपर काम कर रहे हैं? अपने डेटा के ऊपर ही.
फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर अगर 4 फंक्शन आपने बनाए तो वो 4 फंक्शन किसके ऊपर काम करेंगे, ऑब्वियसली उन्हीं डेटा मेंबर्स के ऊपर जो उस क्लास में आपने डिफाइन करे हुए हैं ऑलरेडी। सो इसी तरह व्यू लेयर क्लासेस का मतलब क्या है, एक हमने फंक्शंस कुछ मेथड्स इकट्ठे करके इनकैप्सुलेट कर दिए एक यूनिट के अंदर, जो काम किसके लिए करेंगे, सिर्फ उसी एक व्यू लेयर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर रजिस्ट्रेशन पेज की बात करूं तो उसकी क्लास अलग बनेगी, उसको मैं बोलूंगा रजिस्ट्रेशन व्यू लेयर क्लास। लॉगिन पेज की बात करूं तो मैं उसको बोलूंगा लॉगिन व्यू लेयर क्लास। मतलब लॉगिन के लिए जो जो मेरे को कंपोनेंट्स चाहिए प्लस उसके फंक्शंस चाहिए, उसको मैंने इकट्ठे एक यूनिट में बंद कर दिया और उसको बोला लॉगिन पेज की क्लास है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए बोला ये रजिस्ट्रेशन पेज की क्लास है। तो ये मेरे लिए दो क्या हो गई, व्यू लेयर क्लासेस हो गई, जिनसे मैं एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करूंगा। सो the process of designing view layer class is divided into 4 major activities. The first activity is macro level UI design process and second is micro level. दो चीजें हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो। मैक्रो का मतलब अगर लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो हर चीज को ऊपर ऊपर से देखना, डेप्थ में ना जानना। माइक्रो मतलब हर चीज को डिटेल्ड वे में देखना। तो मैक्रो लेवल यूआई डिजाइन प्रोसेस में हम बात करेंगे आइडेंटिफाइंग न्यू लेयर ऑब्जेक्ट्स। न्यू लेयर आइडेंटिफाइंग व्यू लेयर ऑब्जेक्ट्स। व्यू लेयर ऑब्जेक्ट्स मतलब रजिस्ट्रेशन पेज है एप्लीकेशन का, उस पे ऑब्जेक्ट्स क्या क्या मिलेंगे आपको। एक तो आपको फर्स्ट नेम लिखने का टेक्स्ट फील्ड मिलेगा, लास्ट नेम लिखने का टेक्स्ट फील्ड मिलेगा, अपना यूजर नेम का टेक्स्ट फील्ड मिलेगा, पासवर्ड का टेक्स्ट फील्ड मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ का टेक्स्ट फील्ड मिलेगा, मोबाइल नंबर का टेक्स्ट फील्ड मिलेगा। तो ये जितने भी मेरे को आइटम्स मिल रहे हैं उस पेज पे, दैट आर कॉल्ड व्यू लेयर ऑब्जेक्ट्स। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए यूआई बनाने से पहले कि हमें अगर कोई यूजर को रजिस्टर कराना है तो उसको ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से देने पड़ेंगे। या फिर आप इनको ये भी तो कह सकते हो यूज केसेस। हमने पढ़ा था यूज केस क्या होता है, वो सारे काम जो एक यूजर अपनी एप्लीकेशन से करना चाहता है उससे रिलेटेड उसके फंक्शंस। हम अगर एटीएम सिस्टम को कंसीडर करें, एक यूजर जाएगा, वो क्या करेगा, एटीएम पिन एंटर करेगा, कैश विड्रॉल करेगा, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकता है, बैंक बैलेंस चेक कर सकता है। तो ये कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, चेंज पिन, बैंक बैलेंस, ये सब मेरे क्या बन गए, यूज केसेस, जिनको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैंने अपनी एप्लीकेशन के लिए व्यू लेयर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए। जैसे एक व्यू लेयर ऑब्जेक्ट हो गया एटीएम पिन, दूसरा हो गया कैश विड्रॉल, तीसरा हो गया मेरा बैंक बैलेंस चेक। ऐसे मेरे मल्टीपल व्यू लेयर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सेकेंड है माइक्रो लेवल यूआई डिजाइन एक्टिविटीज। इसके अंदर हमारे दो स्टेप्स आते हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया मैक्रो लेवल पे, तो माइक्रो लेवल में क्या करेंगे, हम उन ऑब्जेक्ट्स का डिजाइन करेंगे बाय अप्लाइंग डिजाइन एक्सियम्स एंड कोरोलरीज। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिजाइन एक्सियम्स एंड कोरोलरीज, आप नोट्स चेक कर सकते हो। इनको यूज करके हम व्यू लेयर ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करेंगे। सेकेंड काम हम क्या करेंगे, प्रोटोटाइपिंग द व्यू लेयर इंटरफेस। प्रोटोटाइपिंग द व्यू लेयर इंटरफेस मतलब एक ब्लूप्रिंट बना लेना कि आपकी एप्लीकेशन दिखेगी कैसे। एक पेज के ऊपर या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, फोटोशॉप पे आपने एक डिज़ाइन बना लिया कि हाँ इस एप्लीकेशन में मेरा यहाँ पर फर्स्ट नेम का बॉक्स होगा, यहाँ पे लास्ट नेम का बॉक्स होगा, यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी जाएगी, यहाँ पासवर्ड जाएगा। मतलब एक छोटा सा आपने ब्लूप्रिंट डिज़ाइन बना के तैयार रख लिया और फाइनल एप्लीकेशन आपकी वैसी दिखने वाली है। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, प्रोटोटाइप। और मैंने व्यू लेयर ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन एक्सियम क्लोरली से डिज़ाइन कर लिया, उसको मैं बोलूँगा, इन दोनों को मैं क्या बोलूँगा, माइक्रो लेवल यूआई डिज़ाइन। मैक्रो लेवल में मैंने अपने यूज़ केसेस आइडेंटिफाई और एनालाइज कर लिए थे। ठीक, जब मेरे ये दो काम हो जाएं तो अब मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली इन दोनों को क्लब करूँगा, एक एप्लीकेशन तैयार करने की कोशिश करूँगा, एक प्रोग्रामर एक डिज़ाइनर की हेल्प से। तो उसके बाद जब एप्लीकेशन तैयार होगी तो मैं क्या करूँगा, टेस्टिंग यूजेबिलिटी एंड यूज़र सेटिस्फेक्शन। क्या वो एप्लीकेशन ठीक से चल रही है, क्या वो यूज़र सेटिस्फाई हो रहा है। अगर तो थोड़ी सी भी कहीं एरर दिखती है तो मैं उसकी रिफाइनिंग करूँगा और दोबारा से मैक्रो लेवल माइक्रो लेवल के अंदर जाऊंगा, कुछ चेंजेस नीडेड है तो उनको करके आऊँगा, फिर से टेस्टिंग करूँगा। फिर कुछ एरर आता है, मैं दोबारा माइक्रो लेवल मैक्रो लेवल में कुछ चेंजेस करके आऊँगा, फिर टेस्टिंग करूँगा। ऐसे में आइटरेट करता रहूँगा जब तक मेरे एरर्स मिनिमाइज नहीं हो जाते, जिसे मैंने बोला रिफाइनिंग एंड आइटरेटिंग द डिज़ाइन। सो आई होप कि यूआई डिज़ाइन अगर हमें एक एप्लीकेशन का करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, व्यू लेयर। व्यू लेयर के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट यूज़र से डेटा लेना, आउटपुट यूज़र को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना।
देन ये काम करने के लिए मैं व्यू लेयर क्लासेस बनाऊंगा जिसके अंदर दो प्रोसेसेस होती हैं, एक मैक्रो लेवल की, एक माइक्रो लेवल की। मैक्रो लेवल मतलब एनालाइज करना यूज केसेस को, माइक्रो लेवल उन यूज केसेस के लिए हमें प्रॉपर प्रोटोटाइपिंग और डिजाइनिंग करना, देन टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। नेक्स्ट वी कम टू द मैक्रो लेवल प्रोसेसेस। मैक्रो लेवल प्रोसेसेस होती क्या है, इनको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। The main goal of this level is identifying view class by analyzing the use cases. As I have already told you, the macro level processes will analyze the use case. It will deal with the use cases. So this interface object handles all communication with the actor. एक यूज केस डायग्राम बनता है तो उसमें एक्टर होते हैं ना, मतलब वो एक्टर का काम क्या है, एक एटीएम मशीन के साथ सिमुलेट करना। एक्टर कौन है, वो यूजर जो एटीएम मशीन पे जाएगा काम करने कुछ। तो इन मैक्रो लेवल प्रोसेसेस का काम क्या है, उन एक्टर्स के साथ कम्युनिकेशन करना, बट प्रोसेसेस नो बिजनेस रूल्स और ऑब्जेक्ट स्टोरेज एक्टिविटीज। अब एटीएम मशीन के ऊपर जो काम हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है मैक्रो लेवल प्रोसेसेस का, क्योंकि वो एक क्या चीज आ गई, डिटेल्ड काम, डिटेल्ड व्यू। और डिटेल्ड व्यू हम किस में देखते हैं, माइक्रो लेवल में। मैक्रो लेवल में हम क्या देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से क्या काम हो रहा है। हम एटीएम मशीन पे गए तो वहां क्या क्या काम हो सकते हैं, एक एक्टर वहां पे क्या कर सकता है, अपना पिन चेंज कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है, बैंक बैलेंस चेक कर सकता है। तो उसको हमने बोला मैक्रो लेवल प्रोसेसेस, मतलब जितना एक्टर से रिलेटेड कम्युनिकेशन है वो कर रहे हैं मैक्रो लेवल प्रोसेसेस, बिजनेस रूल्स और ऑब्जेक्ट से डील नहीं कर रहे। द व्यू लेयर मैक्रो प्रोसेसेस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप, दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट, डिटरमाइन इफ क्लास इंटरैक्ट्स विद ह्यूमन एक्टर, ये हम देख ही चुके हैं अभी। अब ह्यूमन एक्टर से इंटरैक्शन का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई न्यू इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स फॉर क्लास। क्या अगर एक यूज़र एटीएम मशीन पे गया है तो उसके लिए हम और क्या सुविधा उस एटीएम मशीन पे दे सकते हैं ताकि यूज़र और ज़्यादा सेटिस्फाई हो। फॉर एग्जांपल पुराने टाइम में एटीएम मशीन में हम सिर्फ अपना एटीएम कार्ड डाल के कैश विड्रॉल कर सकते थे, पिन चेंज कर सकते थे। अब आजकल ऐसे एटीएम्स भी आ गए हैं जिसमें हम कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं, चेक भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया न्यू व्यू इंटरफेसेस ऑब्जेक्ट्स कि हम और क्या क्या एडिशंस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, कल को यूज़र को क्या क्या अपडेट दे सकते हैं। और यूज़र और उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप्स हम किससे डिपिक्ट करते थे, एरोज से, कि एक यूज़र एटीएम पिन चेंज कर सकता है और एटीएम पिन चेंज होगा तो वो एटीएम पिन आपके बैंक के डेटाबेस में भी जाएगा और यूज़र के पास भी स्टोर्ड रहेगा। तो रिलेशनशिप्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आ गया आइटरेट एंड रिफाइन, कि जब तक सारे एरर्स मिनिमाइज नहीं हो जाते ये काम करते रहो करते रहो करते रहो जब तक जीरो एरर स्टेज पे नहीं पहुंच जाते। और इस चीज़ का एडवांटेज क्या है कि हम यूज़र को और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस दे पा रहे हैं, उसके और एरर्स को मिनिमाइज करके यूज़र की और मतलब और ज़्यादा सुविधाएं अपनी एप्लीकेशन से हम अपने यूज़र को दे सकते हैं, सो दैट द यूज़र इज़ फुल्ली सेटिस्फाइड विद आवर प्रोडक्ट एंड नेवर लुक फॉर एनी अदर प्रोडक्ट टू सॉल्व इट्स पर्पस। सो ये था मैक्रो लेवल प्रोसेसेस। इसको मैंने समझाया है, एक्सप्लेन दिस थ्रू द डायग्राम फॉर मैक्रो लेवल प्रोसेसेस। द फर्स्ट स्टेप इज द क्लास इंटरैक्ट्स विद ह्यूमन एक्टर। यही काम था मैक्रो लेवल प्रोसेसेस का। वी हैव टू ओनली कम्युनिकेट विद द ह्यूमन एक्टर, वी हैव टू इंटरैक्ट विद दैट। देन द स्टेज कम्स जूम इन बाय यूटिलाइजिंग द सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम। जब सीक्वेंस कोलैबोरेशन डायग्राम हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, क्या थे सीक्वेंस डायग्राम, वो था कि एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस आना है, फिर दूसरे के बाद तीसरा प्रोसेस आना है, तो उनके बीच में सारे प्रोसेसेस को हमने एक तरीके से ग्रुपिंग करी एंड उनको हम देन वी आर यूजिंग दैट सीक्वेंस डायग्राम टू एनालाइज द वर्किंग ऑफ आवर फाइनल प्रोजेक्ट। एंड कोलैबोरेशन डायग्राम क्या था, जिसको हम कम्युनिकेशन डायग्राम भी बोलते थे। कोलैबोरेशन डायग्राम बेसिकली करता क्या था, हमारे सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं, अगर हमारी क्लासेस होंगी तो उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं उन ऑब्जेक्ट्स की आपस में कम्युनिकेशन कराना, ताकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को पूछ सके एंड दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट को अपना डेटा दिखा सके, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कोलैबोरेशन डायग्राम का काम क्या था, हर ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करना, इंटरैक्शंस इस्टेब्लिश करना। फॉर एग्जांपल एक एक्टर ने एटीएम पिन चेंज करना है तो दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक एक्टर का एटीएम कार्ड
और एक ATM मशीन का पिन चेंज वाला मॉड्यूल, एंड दोज विल कम्युनिकेट विद ईच अदर, एंड उनके बीच में जो डायग्राम से हम डिपिक्शन कराएंगे दैट इज कोलैबोरेशन डायग्राम। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, आइडेंटिफाई करा कि यूज़र को हम और क्या क्या कैपेबिलिटीज़ दे सकते हैं एक ATM मशीन पे। फॉर एग्जांपल हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि फॉर इन द नेक्स्ट अपडेट वी कैन गिव द यूज़र द कैपेबिलिटी टू डिपॉजिट द कैश ऑल्सो। So we have identified the interface objects for the class. We have identified new objects that we can introduce. Then we will define the relationships among those objects and finally we are done. मतलब किया क्या क्या मैक्रो लेवल प्रोसेस में हमने क्लास की ह्यूमन एक्टर से कम्युनिकेट किया, हमने देखा सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम्स की अभी फ़िलहाल एप्लीकेशन की क्या क्या वर्किंग है, कैसे कैसे एप्लीकेशन के अंदर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि हम अपने यूज़र को और क्या क्या कैपेबिलिटीज़ दे सकते हैं, वो कैपेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करी, मतलब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करे, उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करे, एंड वी आर डन। ये सारा चार्ट था मैक्रो लेवल प्रोसेसेस का। ठीक है, अब इसको हम बार बार आइटरेट कर सकते हैं जब तक हमारे एरर्स मिनिमाइज ना हो जाएं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर हमारी क्लास ही ह्यूमन एक्टर से इंटरेक्ट नहीं करती तो हम ये सारा काम मैक्रो लेवल प्रोसेसेस का करेंगे ही नहीं, सीधे लास्ट स्टेज डन पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे एप्लीकेशन में कोई यूज़र ही नहीं है, ऑब्वियसली ऐसी एप्लीकेशन कोई एग्जिस्ट नहीं करती, पर फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमने वो केस भी कंसीडर किया, अगर यूज़र ही नहीं है, एक्टर ही नहीं है, तो उस क्लास का भी कोई काम नहीं है, आप सीधा फाइनल स्टेज पे आ जाओ। तो आई होप मैक्रो लेवल प्रोसेसेस UI क्या होता है, व्यू लेयर का क्या काम है, व्यू लेयर क्लासेस क्या होती हैं, ये आपको अब क्लियर हो गया होगा एंड यू हैव नो डाउट इन दिस। If you have any doubts, you can post in the comment section. Please ask your doubts. I will surely reply that.